Good morning, students. Today we will begin with new chapter Chemical Bonding and Molecular Structure. Students, we know that matter is made up of one or different type of elements. Under normal conditions, no other element exists as an independent atom in nature except noble gases. However, a group of atoms is found to exist together as one species having characteristic properties. Such a group of atoms is called a molecule. Obviously, there must be some force which holds these constituent atoms together in the molecules. Now students, मैटर डिफरेंट एलिमेंट्स से फॉर्म होता है और ये एलिमेंट्स नॉर्मल कंडीशंस में इंडिविजुअल एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं. सिर्फ नोबल गैसेस के ही एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं जो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं. बाकी सभी एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स आपस में ग्रुप की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. वो ग्रुप बनाकर एक पर्टिकुलर स्पीशीज फॉर्म करते हैं जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं. और क्योंकि मॉलिक्यूल फॉर्म होता है डिफरेंट एटम्स के बीच में, इसका मतलब ये जो एटम्स हैं ये आपस में किसी फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं. दिस अट्रैक्टिव फोर्स विच होल्ड्स various constituent atoms and ions together in a different chemical species is called a chemical bond. और इस attractive force को हम कहते हैं chemical bond. तो chemical bond की definition होती है simple words में attractive force which holds various constituents atoms or ions together in different chemical species. Now, since the formation of chemical compound takes place as a result of combination of atoms of various elements in different ways, it raises many questions. अब कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं कि why do atoms combine, कि atoms combine क्यों करते हैं, and why are there only certain combinations possible, कि combine तो करते हैं लेकिन एक particular combinations ही होती हैं, उसके अलावा वो combine नहीं कर सकते हैं. Why do some atoms combine while certain others do not? Why do molecules possess definite shapes? To answer such questions, different theories and concepts have been put forward from time to time. These are Cauchy-Lewis approach, valence shell electron pair repulsion theory, that is called Weissenberg theory, valence bond theory, that is BBT theory, and molecular orbital theory. तो इस चैप्टर में हमने ये डिफरेंट थ्योरीज को स्टडी करना है. ये डिफरेंट थ्योरीज टाइमली प्रेजेंट की गई थी ये एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिरकार एटम्स कंबाइन क्यों करते हैं, मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन क्यों होती है. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉजल-लुईस थ्योरी, वेसेपर थ्योरी, वीवीटी थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. नाउ स्टूडेंट्स, एक चीज अपने माइंड में रखो कि कोई भी सिस्टम हो नेचर में वो स्टेबिलिटी अटेन करना चाहता है. और स्टेबिलिटी अटेन कैसे होती है? एनर्जी को लो करके, लेस करके. अगर लोअर एनर्जी होगी तो स्ट्रक्चर जो होगा, सिस्टम जो होगा वो ज़्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू हायर एनर्जी सिस्टम्स. तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन क्यों होती है? क्योंकि एटम्स स्टेबिलिटी अटेन करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी अटेन होती है एनर्जी लो करके. और जब भी बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज हो जाती है. यानी जब भी मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी तो एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाती है. इन सिंपल वर्ड्स, एवरी सिस्टम tends to be more stable and bonding is nature's way of lowering the energy of the system to attain stability. कि हर कोई सिस्टम स्टेबल होना चाहता है, उसके लिए उसे एनर्जी लेस करनी पड़ेगी. और कौन सा सिस्टम होता है जिसमें बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं, वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है और सिस्टम स्टेबिलिटी अटेन कर लेता है. So let's discuss first approach, that is Cauchy-Lewis approach to chemical bonding. In order to explain the formation of chemical bond in terms of electrons, a number of attempts were made. But it was only in 1916 when Cauchy and Lewis succeeded independently in giving a satisfactory explanation. That was, they were first to provide some logical explanation of valence which was based on the inertness of noble gases. तो कॉजल एंड लुईस ने सबसे पहले एक सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दी, ये बताते हुए कि आखिरकार एटम्स बॉन्ड क्यों फॉर्म करते हैं. और इसके लिए उन्होंने क्या यूज़ किया? इसके लिए उन्होंने
नोबल गैसेस की एग्जाम्पल ली। उन्होंने क्या प्रेजेंट किया लुइस ने कहा कि नोबल गैसेस होती हैं इनर्ट, यानी वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मॉलिक्यूल्स फॉर्म नहीं करती हैं। और उसके पीछे रीज़न क्या था कि नोबल गैसेस के लास्ट शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हीलियम को छोड़ के जिसमें 2 होते हैं। बाकी सभी के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी सबके शेल कंप्लीट थे। तो इसको यूज़ करके लुइस ने एक रूल फॉरवर्ड किया है जिसे बोलते हैं ऑक्टेट रूल। तो लुइस postulated that atoms achieve this stable octet when they are linked by chemical bonds। तो लुइस ने क्या कहा कि एटम स्टेबिलिटी कैसे अटेन करते हैं, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके, मतलब अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करके उसके लिए उन्हें बॉन्ड फॉर्म करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड की अगर एग्जाम्पल देते हैं, सोडियम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, यानी इसका एटॉमिक नंबर है 11, तो कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 1। और अगर हम न्यू कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो होती है नियॉन 3s1, यानी नियॉन तक की कॉन्फ़िगरेशन सेम है और लास्ट में 3s ऑर्बिटल आएगा जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है 3s1 इलेक्ट्रॉन, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसे सोडियम लूज कर देता है और वो नियॉन की स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेता है जब वो सोडियम आयन में कन्वर्ट होता है। सिमिलरली क्लोरीन, जिसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और हमें पता है कि p सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी स्टेबिलिटी अटेन होती है। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है, जिसकी वजह से उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं और वो कन्फिग्रेशन आर्गन की कन्फिग्रेशन होती है, यानी क्लोरीन अगली नोबल गैस आर्गन की कन्फिग्रेशन अटेन कर लेता है। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके नियोन की कन्फिग्रेशन अटेन करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके आर्गन की कन्फिग्रेशन अटेन करता है। तो एलिमेंट्स नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स को लूज या गेन करेंगे, जिसकी वजह से सोडियम का आयन फॉर्म होगा और क्लोराइड का आयन फॉर्म होगा और ये आयंस आपस में ज्वाइन करके सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन करते हैं। और इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें मेटल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके नॉन मेटल्स की तरफ जाता है, दैट मीन्स मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन मेटल गेन दैट इलेक्ट्रॉन्स, these type of compounds are called ionic compounds or electrovalent compounds. Let's discuss some of the important terms related to Lewis structures and Lewis approach. Lewis symbols. First of all, Lewis he presented various symbols for various atoms and his symbols are as below. किसी भी एलिमेंट का जो लुईस सिंबल होता है वो उसके नॉर्मल सिंबल और उसमें जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको प्लॉट करके लिखा जाता है। जैसे हमें पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, यानी इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी जनरल कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। तो लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कार्बन का लुईस सिंबल होगा C और साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स आप प्लॉट कर दोगे, ये हमें प्रेजेंट करते हैं लुईस सिंबल्स। नेक्स्ट is your electrovalent compounds, electrovalent bonds. Now, on the basis of ionic bonding, Lewis put forward a rule called octet rule. And according to this rule, atoms can combine either by transfer of valence electrons from one atom to another or by sharing of valence electrons in order to have an octet in their valence shells. This is known as octet rule. यानी हमने क्या अभी तक पढ़ा कि एटम्स क्या करते हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं या गेन करते हैं। और ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ऑक्टेट मतलब लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले। तो इसीलिए अपने लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं। और कंबाइन कैसे कर सकते हैं? either by transferring of electrons or by sharing of valence electrons, और इस रूल को कहते हैं octet rule. So far we have studied about ionic bond in which the electrons are being transferred from one element to other element.
but now we will be going to study about covalent bond. Now in covalent bond, electrons are being shared between the two atoms. For example, here in case of water, we know that oxygen contains 6 electrons, valence electrons, and each hydrogen contains only 1 valence electron. So hydrogen will have to share one more electron, that means it requires 2 electrons to have stable configuration, and at the same time oxygen will require 8 electrons in its outer shell to have a stable configuration. So in this case, oxygen and hydrogen number 1 and oxygen, they are sharing 2 electrons between them, and at the same time hydrogen number 2 and oxygen, they are again sharing 2 electrons between them. That means 4 electrons are being shared between 2 hydrogen atom and 1 oxygen atom. Such type of bonding is called covalent bonding, and such type of structures, they are known as Lewis structures और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स. यानी इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं लुईस स्ट्रक्चर्स, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं. नाउ हाउ टू ड्रॉ लुईस स्ट्रक्चर्स और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स और आयंस. स्टडी how can we draw Lewis structures, that is electron dot structures for various compounds and ions. First of all, let's take an example of ammonia, that is NH3. अब स्टूडेंट्स क्लास 10th में हम क्या करते थे, हम सबसे पहले इंडिविजुअल एटम्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस लिखते थे. ओके और फिर हम क्या करते थे, हम इन इंडिविजुअल एटम्स के लुईस सिंबल्स लिखते थे, जिसमें नाइट्रोजन को हम सेंटर पे रखते थे, और नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 1 2 3 4 एंड 5. सिमिलरली 3 हाइड्रोजन्स हैं, हर एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है. और फिर हम क्या करते थे, इनकी शेयरिंग करते थे. अब शेयरिंग कैसे करते थे, हमें पता है हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन और शेयर करना है ताकि उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाए. तो ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नाइट्रोजन के साथ. सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन 1 शेयर करेगा, और सिमिलरली ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिसकी वजह से हर एक हाइड्रोजन के पास 1 and 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे. और सिमिलरली नाइट्रोजन क्या करेगा, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करेगा. तो जितने हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा नाइट्रोजन से, उतने ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन से करेगा, यानी म्यूचुअल शेयरिंग होती है. तो ये नाइट्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से, 1 इस हाइड्रोजन से और 1 इस वाले हाइड्रोजन से शेयर करेगा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन के पास भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ हो जाता है. अब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के लिए तो ये सिंपल है. नॉर्मल जो कंपाउंड्स है, नॉर्मल मॉलिक्यूल्स में हम डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन आयंस अगर हों तो वहाँ पर हम क्या करेंगे. तो एक मेथड होता है जिसकी हेल्प से हम आसानी से किसी भी सब्सटेंस का लुईस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं. तो लेट अस स्टडी दैट मेथड. हम अब उस मेथड से इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे. नाउ once again we will draw electron dot structure of ammonia NH3 but with new method. Now in this method, first of all we have to identify which particular element will have to be taken as central atom, यानी सेंटर में कौन सा एलिमेंट रखना है और टर्मिनल पोजीशंस पे कौन सा एलिमेंट रखना है. तो सबसे पहले अपने माइंड में ये चीज़ रख लो कि वो एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है वो हमेशा सेंटर में होता है, यानी सेंट्रल एटम हम उस एटम को रखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है. अब इस केस में हमारे पास नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है. तो एक चीज़ और याद कर लो कि हाइड्रोजन एंड हैलोजन्स ये हमेशा सिंगल बॉन्ड ही फॉर्म करते हैं. इसका मतलब ये हमेशा टर्मिनल पोजीशंस पे होंगे. तो कोई भी केस जिसमें हाइड्रोजन्स हों और हैलोजन्स हों, उनको हमेशा हम टर्मिनल पोजीशंस पे रखेंगे और दूसरे वाले एलिमेंट को हम सेंट्रल पोजीशन पे रखेंगे. या फिर हम इस तरह से भी लर्न कर सकते हैं कि वो एलिमेंट जिसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, यानी जो मल्टीवेलेंट है, जिसमें ज़्यादा डैशेस लगेंगे, ज़्यादा बॉन्ड्स बनेंगे, उस वाले एटम को हम कहाँ रखेंगे, सेंटर में रखेंगे. तो इस केस में अगर आप देखोगे नाइट्रोजन जो है, उस केस में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 हैं
और हाइड्रोजन के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। तो हाइड्रोजन है तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, जिसका मतलब हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। लेकिन नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, यानी हाइड्रोजन केस में 3 डैशेस आएंगे, 3 बॉन्ड्स बन सकते हैं, चाहे तो सिंगल बॉन्ड बने या डबल की फॉर्म में या ट्रिपल की फॉर्म में। तो मल्टीवेलेंट कौन सा है? नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन को हम रखेंगे सेंटर पे, तो नाइट्रोजन हमारा होगा सेंट्रल एटम और हाइड्रोजन आएंगे टर्मिनल यानी साइड वाली पोजीशंस पे। अब हमें यह पता लग गया कि सेंटर में कौन सा आएगा और टर्मिनल पोजीशंस पे कौन से आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप होता है, हमने क्या करना है कि इस केस में ए का मतलब होता है अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है हमारे पास, उनको लिखना है। तो हमारे पास इस केस में एक नाइट्रोजन का एटम है और 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। एक नाइट्रोजन का, और हमें पता है नाइट्रोजन के पास कितने वैलेंस हैं? 5 है। तो 5 प्लस अब 3 हमारे पास हाइड्रोजन थे और हर एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस 1 है, जिसका मतलब जो टोटल हमारे पास अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 8 हैं। जो बैलेंस अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने? 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि बॉन्डिंग में सिर्फ और सिर्फ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं। तो सबसे पहले अवेलेबल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिख लो। देन नंबर 2, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करनी हो, क्योंकि एलिमेंट्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं? नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन करने के लिए। उसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? अब एलिमेंट्स कौन से हैं? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। और हमें पता है नाइट्रोजन की नोबल गैस कन्फिग्रेशन होगी जब नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हाइड्रोजन के लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि उसमें ड्यूप्लेट बनता है। तो इसका मतलब जब नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती होगी तो नाइट्रोजन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और हर एक हाइड्रोजन के पास टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तभी वो स्टेबल होंगे, नोबल गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर सकते हैं। इसका मतलब इस केस में हमारे पास आया 8 + 6 दैट इज इक्वल टू 14। कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स 8 थे, लेकिन नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए 14 चाहिए। 14 तो है नहीं, 8 है, और क्योंकि कोवलेंट बॉन्डिंग है इसका मतलब 14 तो थे नहीं, तो इसका मतलब बाकी इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आएंगे? शेयर्ड होंगे। तो थर्ड स्टेप होता है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। एस का मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं नोबल गैस कन्फिग्रेशन माइनस अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स। तो नोबल गैस यानी एन थे 14, अवेलेबल थे हमारे पास 8, तो कितने बचे हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होंगे बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अब 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड होते हैं, इसका मतलब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डैशेस बनेंगे वो कितने होंगे? वो होंगे 6/2 दैट इज इक्वल टू 3, यानी 3 बॉन्ड्स फॉर्म होंगे हमारे पास बिटवीन दी एटम्स, क्योंकि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक सिंगल डैश फॉर्म करते हैं। इसका मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में टोटल कितने बॉन्ड्स रहेंगे? 3 बॉन्ड्स होंगे। और साथ ही साथ हमें यह भी पता लग जाएगा कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं जो लोन होंगे, यानी जो पार्टिसिपेट नहीं करते बॉन्डिंग में, जो किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते पर लिखे जाते हैं। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे 8, शेयर्ड कितने हुए? 6। इसका मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होंगे? लोन पेयर की फॉर्म में होंगे, यानी जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। तो वंस अगेन अमोनिया के केस में अवेलेबल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे 8, नोबल गैस के लिए चाहिए 14, और जिसमें शेयर्ड होंगे इसका मतलब 6, और लोन पेयर होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब हमने इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है यानी मल्टीवैलेंट होता है वो सेंटर पे आता है, और बाकी जो होंगे वो कहाँ जाएंगे? टर्मिनल पोजीशंस पे। तो ये तो कॉमन है कि हाइड्रोजन सिर्फ टर्मिनल पोजीशन पे जाता है और नाइट्रोजन सेंटर पे। अब हमने क्या ऊपर नोटिस किया था कि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन शेयर थे। अब 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, इसका मतलब जो टोटल बॉन्ड्स होंगे वो 3 होंगे। तो हमने क्या करना है? सबसे पहले 3 बॉन्ड्स बनाने हैं, 1, 2 एंड 3। 3 आपने बॉन्ड्स बना लिए। हमेशा सेंट्रल एटम से आपने बनाना है। देखो कंपाउंड फॉर्म होता है तो इसका मतलब ऑब्वियसली डिफरेंट एटम्स में सिंगल बॉन्ड तो होगा ही। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे चले गए किस फॉर्म में? शेयर्ड की फॉर्म में। अब उसके बाद आपने क्या करना है? आपने सभी एटम्स के ऊपर 8 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। तो हम कैसे करेंगे? हम देखेंगे कि इस केस में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन मतलब 1 एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स तो पहले से हो गए, यानी ये कंप्लीट हो गया।
एक बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी हाइड्रोजन कंप्लीट हो चुका हुआ है। यहाँ पर भी एक सिंगल बॉन्ड था मतलब हाइड्रोजन कंप्लीट हो चुका हुआ है, यानी हाइड्रोजन पे अब कोई भी लोन इलेक्ट्रॉन लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन नाइट्रोजन की अगर बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के ऊपर लिखे जाएंगे, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हाइड्रोजन जो है उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। अब इस डायग्राम को अगर हम जो ऊपर इंफॉर्मेशन आई थी उसके साथ अगर हम कोरिलेट करते हैं, अब कोरिलेट कैसे करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, 8, काउंट करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, यानी ये वाला हमारा जो प्रोसेस है ये कंप्लीट होगी। नंबर 2, शेड कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, कितने बॉन्ड बने, 3 बॉन्ड बने, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये भी सही है हमारी इंफॉर्मेशन। और लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स लोन है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में अगर आप देखोगे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है येलो वाले, ये लोन इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी ये वाली इंफॉर्मेशन भी हमारी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप किसी भी कंपाउंड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कभी भी ड्रॉ कर सकते हो। अब करना क्या, आपने सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि डिफरेंट एटम्स में से सेंटर पे किसे रखना है और टर्मिनल पे किसे रखना है। सिंपल सी ट्रिक है, हाइड्रोजन और हेलोजन्स जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं वो हमेशा टर्मिनल पे होंगे, और जिस केस में मल्टी बॉन्ड्स बन सकते हैं, यानी जिस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, उसको सेंटर पे रखना है। इन अदर वर्ड्स, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो सेंटर पे आएगा। फिर नंबर 2, आपने टोटल नंबर ऑफ अवेलेबल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं। जैसे नाइट्रोजन में 5 थे और हाइड्रोजन के लिए 1 1 1 3 टाइम्स आपके 1 हो गए, तो टोटल 5 + 3 8 इलेक्ट्रॉन्स। फिर आपने देखना है नोबल गैस के लिए कितने चाहिए। नोबल गैस का मतलब अगर इनके पास पूरे इलेक्ट्रॉन्स होते, नोबल गैस कन्फिग्रेशन होती, तो कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसका मतलब नाइट्रोजन के पास 8 चाहिए और हाइड्रोजन के पास, इंडिविजुअल हाइड्रोजन के पास 2, तो 2 × 3 6, 6 + 8 14। फिर हमने देखना शेयर कितने हुए, क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही नहीं, इसका मतलब बाकी शेयर हुए होंगे, तो शेयर कितने हुए, टोटल जो नोबल गैस थे उसमें से अवेलेबल वाले को माइनस कर दो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाते हैं 6। अब शेयर 6 हैं, अवेलेबल 8 थे, तो मतलब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे 8 - 6 वो रहेंगे लोन पेयर की, यानी जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो हमने कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें जैसे पता चलता है कि शेयर कितने हैं, आपने उतने बॉन्ड बना देने हैं, यानी 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 1 बॉन्ड होता है, तो 6 इलेक्ट्रॉन शेयर है, तो सभी के अंदर आप क्या करोगे, पहले 3 बॉन्ड्स बना दोगे, सिंगल 3 बॉन्ड्स, ओके। फिर आपने क्या करना है, उसके बाद आपने जो सेंट्रल एटम है उस पर पूरे 8 इलेक्ट्रॉन्स कर देने कंप्लीट, मतलब जितने होते हैं उतने कर देने हैं। तो 2 2 2 6 तो शेयर फॉर्म में आ गए और 2 आपने लोन फॉर्म में लिख दिए। उसके बाद अगर बाकी जो टर्मिनल पोजीशन वाले एटम्स हैं, अगर उन पे भी लोन पेयर लगाना है तो आप लगा दो, अगर वो कंप्लीट हो गए तो उसको वहीं पर ही हम खत्म कर सकते हैं। Let's discuss another example, this time of some ion, let us say carbonate ion CO3-2. First of all, identify the atom that has to be kept as central atom. तो कार्बन एंड ऑक्सीजन में अगर आप कार्बन की कन्फिग्रेशन देखोगे तो ये होती है 2 4 और ऑक्सीजन की होती है 2 6। तो कॉमन सेंस की बात है, वैसे भी कार्बन एंड ऑक्सीजन में से कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती जाती है। तो ऑक्सीजन कार्बन के बाद आता है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब कार्बन सेंटर में रखा जाएगा। अगर ऐसे नहीं पता लगता तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं, तो कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए और ऑक्सीजन को 2 चाहिए। इसका मतलब कार्बन टेट्रावैलेंट है, मतलब 4 डैशेस 4 बॉन्ड्स फॉर्म कर सकता है और ऑक्सीजन सिर्फ 2 कर सकता है। तो जो मल्टीवेलेंट होता है उसको सेंटर में रखा जाता है, यानी कार्बन को सेंटर में रखना है हमने। अब सेकंड स्टेप क्या हमारा, सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये तो क्लियर हो गया, कार्बन सेंटर में और ऑक्सीजन टर्मिनल पोजीशंस पे हैं। तो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कि कितने अवेलेबल है हमारे पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो एक कार्बन था, कार्बन के कितने अवेलेबल थे, वैलेंस 4 + 3 ऑक्सीजन है और हर एक ऑक्सीजन के पास होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 × 6। अब क्योंकि ये आयन है
और आयन कैसे फॉर्म होते हैं? बाय गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये अनायन है और हमें पता है अनायन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन होते हैं। नेगेटिव चार्ज का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, और जो वैलेंसी होती है वो रिप्रेजेंट करती है कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन या लूज हुए। तो इस केस में क्योंकि -2 है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए हैं, और वो गेन हुए हैं तो वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे प्लस का साइन डाल के, क्योंकि गेनिंग हुई है। नेगेटिव चार्ज का मतलब गेनिंग हुई है। तो इसका मतलब टोटल अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 + 18 + 2 दैट इज इक्वल टू 24। तो 24 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। सेकंड पार्ट, नोबल गैस के लिए कितने चाहिए? अब क्योंकि एक कार्बन है और 3 ऑक्सीजन है, तो सारे के सारे आपके लास्ट शेल जिनके 8 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते सभी में, तो इसका मतलब कार्बन के लिए भी 8 है और तीनों ऑक्सीजन के लिए भी कितने हैं? 8 हैं। तो 3 × 8 यानी 4 × 8 कर लो डायरेक्टली इसको आप, तो 4 8 जार 32 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब नोबल गैस कन्फिग्रेशन के लिए 32 चाहिए। इसका मतलब अब शेयर कितने होंगे? 32 नोबल गैस के लिए चाहिए थे, अवेलेबल 24 थे, तो इसका मतलब 32 - 24 यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर्ड हो रहे हैं। यानी शेयरिंग कितनी हो रही है? 8 इलेक्ट्रॉन्स की। 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने होंगे हमारे पास? 8/2 दैट इज इक्वल टू 4 बॉन्ड्स, यानी 4 डैशेस बनेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। अब हमें ये भी पता लग गया कि शेयर्ड कितने हो रहे हैं। शेयर्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। इसका मतलब टोटल 24 थे, 24 में से 8 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप निकाल दो तो बाकी इलेक्ट्रॉन्स होंगे लोन इलेक्ट्रॉन्स। तो 24 - 8 विच इज इक्वल टू 16 इलेक्ट्रॉन्स। तो 16 इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर की, लोन की फॉर्म में, लोन इलेक्ट्रॉन्स की फॉर्म में होंगे। तो हमने अभी तक क्या देखा है कि कार्बोनेट में कार्बन सेंटर में होना चाहिए, ऑक्सीजन टर्मिनल पोजीशंस पे, अवेलेबल 24 थे, नोबल गैस के लिए 32 चाहिए, शेयर्ड कितने हुए? इसका मतलब 8 हुए, और बॉन्ड 4 बनेंगे, और लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 16, यानी 16 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो किसी भी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इनका। तो वंस अगेन अब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं गिवन इंफॉर्मेशन से। तो इंफॉर्मेशन में हमें क्या पता लगा था? कार्बन सेंटर पे आएगा और ऑक्सीजन टर्मिनल पोजीशंस पे, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। फिर हमें पता लगा था नोबल गैस के लिए 32 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, अवेलेबल 24 थे, जिसका मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 8 होंगे, यानी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड्स होंगे वो 4 बॉन्ड्स बनेंगे, 4 डैश बनेंगे। इसका मतलब 24 - 8 जो होंगे 16 इलेक्ट्रॉन्स, वो लोन इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो अब स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। अब हमें यह पता है कि आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो शेयर्ड हो रहे हैं, जिसका मतलब 4 बॉन्ड्स बनेंगे। तो सबसे पहले हम बॉन्ड्स बनाते हैं 1 2 3 और 4। सिंगल बॉन्ड से स्टार्ट करो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड तो एग्जिस्ट करता ही है, तभी मॉलिक्यूल बनेगा। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करो। तो 4 बॉन्ड्स पूरे हो गए। अब हमने क्या करना है? सभी एटम्स पे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो स्टेबल होगा। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले सेंट्रल एटम से स्टार्ट करो, काउंट करो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं अभी। तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कार्बन के 8 पूरे हैं, क्योंकि शेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जो सिंगल डैश होता है उसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो टोटल 4 डैशेस है कार्बन के पास, इसका मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है। तो कार्बन के केस में कोई लोन इलेक्ट्रॉन प्लॉट नहीं करना। अब बारी आती है ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले ऑक्सीजन नंबर 1, यानी इसको हम ऑक्सीजन नंबर 1 कहते हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है? ऑलरेडी 1 और 2, क्योंकि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ये तो दोनों में शेयर हो रहे हैं, कार्बन में भी ऑक्सीजन में भी। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स और होंगे तभी 8 पूरे होंगे। तो 3 4 5 6 7 और 8, ओके, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब आते हैं ऑक्सीजन नंबर 2 पे। इसे हम कहते हैं ऑक्सीजन नंबर 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी? 1 2 3 4 पहले से हैं, 5 6 7 और 8, यानी इसके भी पूरे हो गए। ऑक्सीजन नंबर 3 पे आते हैं। ऑक्सीजन नंबर 3 पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से हैं, 3 4 5 6
7 and 8, यानी सबके इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। अब इस इंफॉर्मेशन को ऊपर वाली इंफॉर्मेशन से वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 24। कितने अवेलेबल हैं? 24। काउंट कर लो सभी इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो सभी एटम्स पे 24 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, बॉन्ड की फॉर्म में भी और लोन पेयर की फॉर्म में भी। फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 8 है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स काउंट करो, कितने हैं? 4 है, मतलब शेयर्ड 8 इलेक्ट्रॉन्स है। फिर लोन इलेक्ट्रॉन 16 है, काउंट कर सकते हो आप सभी लोन इलेक्ट्रॉन्स को। जितने भी ये ब्लू, ब्लैक और ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोन इलेक्ट्रॉन्स है। आप काउंट करोगे टोटल इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 16, यानी ये इंफॉर्मेशन वेरीफाई हो गई है। अब फाइनल, क्योंकि ये एक आयन था और आयन पे चार्ज था -2, इसलिए जब हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो उसके बाद हम स्ट्रक्चर को ब्रैकेट में लिख के उसके बाहर -2 का साइन भी डालेंगे। तो यह स्ट्रक्चर था कार्बोनेट का लुईस स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड का, चाहे वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो चाहे वो आयनिक फॉर्म में हो, उसके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स इजीली ड्रॉ कर सकते हो।